Today we are going to learn next problem, problem number 7. And from your textbook, problem number 14. Problem number 14, page number 157. Okay. Remember, in this problem we learn undervaluation of assets and overvaluation of assets. Concept related undervaluation of assets and overvaluation of asset. That one concept you already learned in a final account, but again I revive that one concept in this problem. Okay, see, I'll read problem. Mr. Sahil and Mrs. Vanita were partnership sharing profit or losses in the proportion 3:1 respectively. Means in this problem or in this partnership, Sahil or Vanita sharing profit or losses in the ratio 3:1. Means their old ratio is 3:1. Their balance sheet they given here. Their balance sheet as on 31st March. See, balance sheet side first one देखते हैं. Liability side they given all liabilities balance and asset side asset balance. देखो अभी यहाँ पे मैं बताने जा रही हूँ. यहाँ पे आपको ओल्ड रेशो दिया है 3:1. देन देखते हैं लाइबिलिटी साइड के बैलेंसेस एंड एज वेल एज एसेट साइड के बैलेंसेस. पहले देखते हैं पोस्टिंग कहाँ पे किसकी करनी है. जैसे कि फर्स्ट वन बैलेंस आया कैपिटल अकाउंट साहिल एंड वनिता. साहिल एंड वनिता's capital account we posted to partners capital account credit side, where we posted partners capital account credit side. Then they given creditors same as it is posted to new balance sheet. General reserve that can be always distributed to all partners in their old ratio. Old partners means ratio is what? 3:1. So distributed that general reserve in 3:1. Next one, asset side. First one balance is a building 90,000 that can be posted to new balance sheet asset side. Stock 60,000 same as it is posted to new balance sheet asset side. Next, debtors new balance sheet asset side. Cash, here we prepare cash account, cash separate account, that's why is posted to cash account debit side to balance brought down. Then next one, I'll read adjustments. Dinesh is admitted as a partner in a firm on following terms. Here Dinesh is admitted. Okay, in this problem new partner is Dinesh. He is admitted as a partner. Okay, as per following condition. See, first condition, he shall 1/4 share in profit of firm. See here, his share is given here. Here future profit sharing ratio is what? 1/5. Sorry, 1/4. 1/4. Dinesh shall bring 60,000 as capital in cash. उसने क्या लाया है? कैपिटल लाया है 60,000 कैश and 30,000 is share of goodwill. Okay, see, is a capital amount 60,000 and goodwill amount 30,000. Okay, after that next one adjustment, building revalued by rupees 12,000 and stock is undervalued by 20%. ओके, पहले देखते हैं बिल्डिंग के बारे में क्या लिखा है. बिल्डिंग इज ओवर वैल्यूड. एक्चुअली मैंने ये कंसेप्ट बताया था इसके पहले. ओवर वैल्यूड ऐसे दे के आता है और अमाउंट दे के आती है. अमाउंट दे के ओवर वैल्यू लिख के आता है. तो हमेशा याद रखना है
कि मार्केट वैल्यू ज़्यादा लिखी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बुक वैल्यू, मतलब क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन। तो ओवर वैल्यू मतलब यहाँ पे डेप्रिस करेंगे, लेस करेंगे, डिक्रीज करेंगे। मतलब यहाँ पे ये डेप्रिसिएशन होगा, मतलब लेस होगी वैल्यू 12,000। सो उस बिल्डिंग में से लेस, सेकेंड इफेक्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। देन स्टॉक इज ओवर वैल्यू, उसका कैलकुलेट करना होगा। मैं दिखाती हूँ वर्किंग नोट में कैसे कैलकुलेट करना है। एक्चुअली उसका फॉर्मूला था बुक वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 20। क्यों, अभी अंडर वैल्यू है दैट्स वाई माइनस होगा, ओवर वैल्यूड होता तो वहाँ पे प्लस होता। अगेन सुनो, फॉर्मूला क्या था मैंने बताया यहाँ पे, बुक वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 20। ओके, प्रोवाइड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1200। ये तो सिंपल सी एडजस्टमेंट है, आपने आज तक देखी है। तो देखते हैं अभी वन बाय वन एडजस्टमेंट कहाँ पे। पोस्टिंग तो मैंने बताया, पहले एडजस्टमेंट देखते हैं। वहाँ सेकेंड एडजस्टमेंट, फर्स्ट में कुछ तो नहीं है पोस्टिंग करने के लिए, तो सेकेंड एडजस्टमेंट देखते हैं। व्हेन दिनेश ब्रिंग कैपिटल इन कैश देन एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट एंड पोस्टिंग partners capital account credit side by Dinesh capital partners capital account cash rupees 60,000. Then after he bring goodwill, he bought goodwill. When he bought goodwill, then that can be recorded cash account debit to goodwill account, and after that that goodwill रिटेन। अगर यहाँ पे नहीं लिखा है फिर भी इसे रिटेन ही करना है। उसने किस लिए लिया है, तो बिजनेस में रिटेन करने के लिए लाया, दैट्स वाई सेकेंड इफेक्ट होगा रिटेन गुडविल। तो रिटेन गुडविल करने के बाद क्या आएगा, फिर जर्नल एंट्री क्या होगी रिटेन गुडविल की। तो जर्नल एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू साहिल्स कैपिटल अकाउंट टू वनिताज कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाई रेशियो। मोस्ट ऑफ द टाइम सैक्रिफाई रेशो जो होता है वो ओल्ड रेशो ही आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम याद रखो, जो सैक्रिफाई रेशो होता है वो ओल्ड ही रेशो आता है। कैलकुलेट करके देखो, वही आंसर आएगा। ओके, ठीक है, अंडरस्टूड एवरीबडी। उसकी पोस्टिंग होगी, एक तो गुडविल अकाउंट की पोस्टिंग होगी, फर्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय गुडविल साहिल के अकाउंट में एंड वनिता के अकाउंट में, दूसरी गुडविल अकाउंट में पोस्टिंग होगी। देन ओवर वैल्यूड बाय ₹12,000, बिल्डिंग ओवर वैल्यूड हो गए, मतलब उसकी एसेट्स की वैल्यू मार्केट वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बिल्डिंग की बुक वैल्यू, मतलब डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो डेप्रिसिएशन लेस करेंगे 12,000 एंड उसका दूसरा इफेक्ट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। उसकी जर्नल एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। देन स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 20%। तो निकालते हैं, कैलकुलेशन देखते कैसे करना है, दिखाती हूँ। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 20%, तो उसका कैलकुलेशन कैसे करना है। तो स्टॉक की वैल्यू थी 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 20%। तो 20% माइनस करेंगे तो आंसर आ रहा है देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 75,000। कितना आ रहा है 75,000। पहले कितना था 60,000। तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, 75,000 आंसर है। तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कितने रुपीज़ से इंक्रीज हो रहा है, पहले 60,000 था अभी 75,000 हो गया, तो 15,000 से क्या हो गया इंक्रीज हो गया। तो उस एसेट की वैल्यू क्या होगी इंक्रीज होगी। तो एप्रिसिएशन होगा, तो एप्रिसिएशन क्या करते हैं हम रिकॉर्ड करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड और उस एसेट के अंदर ऐड। उसकी जर्नल एंट्री होगी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखते हैं नेक्स्ट वन डेटर्स के बारे में। 1200 क्या है, अब आरडी है तो वो लेस करते हैं, दूसरा इफेक्ट लिखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडी अकाउंट। देखो यहाँ पे जर्नल एंट्री सिर्फ की है, बट आपको लेजर ही सिर्फ प्रिपेयर किया, आपको जर्नल एंट्री भी आपके नोटबुक में लिखनी है। दिखाती हूँ अभी मैं वन बाय वन प्रॉब्लम। पहले देखते हैं बैलेंस, सारे बैलेंस किसकी पोस्टिंग की है।
देखो यहाँ पे पहले वाला दिख रहा है हमें बिल्डिंग दिख रहा है सबको। तो बिल्डिंग की अमाउंट कितनी थी, 90,000 थी। कितनी थी, 90,000 लेस डेप्रिसिएशन, क्योंकि वहाँ पे लिखा था ना ओवर वैल्यूड बाय 12,000, तो 12,000 क्या करेंगे, लेस करेंगे। और उसका दूसरा इफेक्ट ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड, दिखा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। नेक्स्ट स्टॉक का देखते हैं। स्टॉक की वैल्यू क्या होगी, 75,000 हो गया। अभी हमने देखी वहाँ पे 75,000, तो मतलब 15,000 से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ऐड एप्रिसिएशन, ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट। एंड सेकेंड इफेक्ट जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय स्टॉक ₹15,000। ओके, हो गया। उसके अलावा हमने पोस्टिंग की थी, ये वाला बैलेंस है, आपको दिखेगा ये बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओल्ड बैलेंस शीट में दिया था। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया है ओल्ड रेशो में, ये है। ओके, देन जब पार्टनर्स ने कैपिटल लाया था तो उसकी एंट्री हो गई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय कैश ₹60,000 अंडर दिनेश कॉलम के अंदर लिखेंगे। देन जिसने गुडविल लाया था उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो उसकी भी एंट्री लिखी है यहाँ पे। क्या लिखी है, बाय गुडविल साहिल 22,500 एंड वनीता 7,500। ओके, देन बाकी सारी पोस्टिंग की है, देखते हैं एक बार पोस्टिंग की है क्या। देखो क्रेडिटर्स लिखे हैं, क्रेडिटर्स तो लिखे हैं। कैश और बैंक का बैलेंस अभी कितना, एक ऐसे हो गया। तो गुडविल की अमाउंट ऐड करेंगे उसके अंदर। देखो अभी मैं डायरेक्टली बता रही हूँ यहाँ पे क्या क्या होगा। कैश की अमाउंट पहले कितनी थी, 6,000, बाद में 6,000 के अंदर ऐड करने से कितनी अमाउंट थी, 6,000 प्लस गुडविल की अमाउंट, सॉरी कैपिटल कितने लाया था, 60,000। कैपिटल कितना था, 60,000। ओके, और प्लस गुडविल की अमाउंट कितनी थी, 30,000। कितनी थी, 30,000। तो कितने हो गए, 96,000। कितने हो गए, 96। देखो 60 + 30 90, 96,000। ओके, डायरेक्टली कैलकुलेट करके लिखते तो भी चलेगा या सेपरेट अकाउंट क्रिएट करते तो भी चलेगा। अंडरस्टूड। ओके, देखो बाकी सारे लिखे हैं। डेटर्स के बारे में भी क्या है, डेटर्स के ऑलरेडी लेस की है। और दूसरा इफेक्ट लिखा है कहाँ पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। बाद में रिवैल्यूएशन अकाउंट टैली करते। रिवैल्यूएशन अकाउंट टैली करने के बाद हमें यहाँ पे डिफरेंस दिखेगा। डिफरेंस है 1,800, वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है उन ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में। 15,000 ज़्यादा थी क्रेडिट साइड, दोनों साइड में लिखने का। यहाँ 15,200, तो 15,000 में से माइनस करते, 15,000 में से माइनस करते हैं 13,200, तो आंसर आ रहा है 1,800। तो 1,800 क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा हमें रेशो में 3:1 में। तो ये हो गया 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट। ये प्रॉफिट था तो वो ट्रांसफ़र होगा, रिवैल्यूएशन का जो भी बैलेंस है वो ट्रांसफ़र होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय रिवैल्यूएशन साहिल 1,350 एंड 450। बाद में क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट टैली करते हैं। कैपिटल अकाउंट टैली करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा 60,000 दिनेश के टैली हो रहे थे, दैट्स वाई यहाँ पे बैलेंस कैरिड डाउन क्या आएगा, 60,000 दिनेश के लिए। वनिता के लिए 84,450। यहाँ पे डेबिट साइड में कुछ भी बैलेंस नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे 84,450। देन सेम एज इट इज़ साहिल के लिए 1,18,350। फिर ये बैलेंस ट्रांसफ़र होगा हमारे बैलेंस शीट में गुडविल, सॉरी हमारा कैपिटल जो भी बैलेंस था वो यहाँ पे जाएगा और फिर बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। देखो इस सबसे इसमें कुछ भी डिफरेंस, सिर्फ अलग क्या था तो ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन, ये याद रखो क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन।
अगर अमाउंट दे के कोई भी ओवर वैल्यूएशन लिखता है तो वहाँ पे डेप्रिसिएशन होगा, अंडर वैल्यूएशन लिखता है तो वो एप्रिसिएशन होगा। ओके, ये याद रखो, ओवर वैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन, अंडर वैल्यूएशन, एप्रिसिएशन, याद रहेगा सबको। ओके, तो ये नोट डाउन करके रखो बुक में, इसकी जर्नल एंट्री भी करनी है आपको। आज के लिए इतना सफिशिएंट प्रॉब्लम था, इसमें कुछ अलग नहीं है। क्या क्या पढ़ा सिर्फ याद रखो और करो।